Everyone. Today's topic of discussion is oscillations. It's not that kind of motion we used to study in classical mechanics, as in Newton's laws of motion or circular motion or parabolic motion. We are studying a different kind of motion in this chapter. So, this chapter itself provides you a different observation about motion. You can simply feel it, right? Everyone have seen the swing, the children are playing in the park, you can see this thing, the swing are just oscillating about the mean position, right? It's just a to and fro motion. What you can observe here, like in the Newton's laws of motion or any other motion, you can see अगर आप ऑब्जेक्ट को राइट फोर्स लगाते हो तो राइट जाता है, राइट? लेकिन यहाँ क्या है ना, अगर तुम उसको राइट साइड डिस्प्लेस करो तो वो लेफ्ट आएगा, लेफ्ट साइड डिस्प्लेस करोगे तो राइट आएगा. दैट मीन इट विल ऑलवेज ऑसिलेट अबाउट द मीन पोजीशन. तो कंडीशन है इसकी यहाँ से ऐसे डिराइव होती है, लाइक हियर वी आर फोकसिंग ऑन द सिंपल हार्मोनिक मोशन. तो उसकी कंडीशन ही ऐसी है कि एक्सीलरेशन इज ऑलवेज towards negative of displacement. That means whenever you are displacing it right, it will come towards left. If we are displacing left, it will come towards right. That means for example, if you can understand, like suppose your main goal, your major goal is your studies, and whenever you are deviating towards any other thing in your life, again you are coming back towards the studies. And whenever you are going somewhere else, or some health problem, whatever it is there, you are coming back to your studies, right? If you are a student. So this is the mean position जिसके about objects क्या करते हैं, oscillate करते हैं. So this is a completely different type of motion we study here. So here what we used to calculate the time period, the energy of SHM, acceleration of SHM. We have a certain simple harmonic motion में we can write it in a sinusoidal form. तो completely mathematics का यहाँ पे explanation जरूरी होता है कि जैसे कि अगर हम oscillations में देखें तो when you will study in class 12th, electric current में भी जब हम लोग लिखते हैं तो उसमें भी we used to write it in a sinusoidal form, right? तो यहाँ पे भी जब हम अपनी equations को, displacement की equations को लिखते हैं या velocities की equations को लिखते हैं तो उसको साइनसॉइडल फॉर्म में लिखते हैं, बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज ऑसिलेटिंग, राइट? तो सिंपल हार्मोनिक मोशन फोकस करेंगे, यहाँ पे चीजें कैसे कैलकुलेट करेंगे. एट द एंड आई विल गिव यू ऑल द फॉर्मूलाज जिसको आप रिवाइज कर सकते हो. एग्जाम में सिंपल क्या बताऊं ना, दिस चैप्टर इज सिंपली स्कोरिंग दिस चैप्टर एंड आफ्टर दैट वेव्स. तो जब भी आपको ये पार्ट पढ़ना है ना, तो पहले एसएचएम पढ़ो, देन वेव्स पढ़ो. एसएचएम और वेव्स हमेशा एक संग कंप्लीट किया जाता है, और एसएचएम और वेव्स में डिफरेंस को समझ के पढ़ना, राइट? तो एसएचएम एक मोशन है, राइट? तो एक मोशन है. वेव आई विल एक्सप्लेन इट इन द नेक्स्ट पार्ट, राइट? व्हाट इज वेव्स, राइट? तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि ये बिल्कुल डिफरेंट मोशन है, और इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं दे आर वेरी वेरी सिंपल. आपको 2 ही 3 फॉर्मूले से आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाता है, right? So let's start with the first question. Is that as shown in the figure, a spring is kept in a stretched position with some extension by holding the mass 1 kg and 0.2 kg. देखो यहाँ पे 200 ग्राम लिखा है, that means it's 0.2 kg. Same thing, right? तो 0.2 kg with a separation more than spring natural length and released. And after that हॉरिजॉन्टल सरफेस देखो बोला है फ्रिक्शन लेस, दैट मींस हमें फ्रिक्शन वगैरह के फोर्स को इग्नोर करना है. द एंगुलर फ्रीक्वेंसी यू नीड टू कैलकुलेट. व्हाट यू नीड टू कैलकुलेट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी. तो हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी का डायरेक्टली फॉर्मूला डिराइव भी कर लेते हैं, या डायरेक्टली फॉर्मूला भी पता होता है, एंड ये फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ के बाई म्यू, राइट? तो यहाँ पे ओवरऑल हमारे पास मास अगर हम इन दोनों का लिखे तो दोनों मासेस के लिए हम म्यू अलग से कैलकुलेट कर सकते हैं. दिस इज m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2. तो मैं म्यू कैलकुलेट कर देती हूँ दोनों का. m1 इंटू m2, इसको केजी में कैलकुलेट करना, ऐसा यूनिट में बोल रहे हैं. तो 1 इंटू 0.2 अपॉन 1 प्लस 0.2, सो इट विल बिकम 0.2 अपॉन 1.2. सो डेसिमल गया एंड 2 6, तो 1/6. सो म्यू की वैल्यू मेरे पास आ गई, that is 1/6. तो म्यू की वैल्यू आ गई, एंड के की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है, that is 150. So you can just put the values here and you will get your answer. So question is very simple. अगर तुम देखो यहाँ पे तो अंडर रूट ऑफ के इज गिवन 150. So 150 और 1/6, तो 150 इंटू 6 हो जाएगा. 150 इंटू 6 इज 900 हो जाएगा. तो 900 का स्क्वायर रूट 30.
तो 30 यहाँ पे यूनिट हो जाएगी रेडियन पर सेकेंड, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी है तो यूनिट डेफिनेटली इट विल बी रेडियन पर सेकेंड. तो 30 रेडियन पर सेकेंड. सो द आंसर विल बी डी पार्ट. राइट. सो द क्वेश्चन वाज सिंपल. डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पता है तो डायरेक्टली आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हो. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर. तो टाइम पीरियड गिवन है t इज इक्वल टू, अगर नहीं भी गिवन होता तो मुझे पता था t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट k बाई m होता है. और यहाँ पे क्या गिवन है आपको ऑफ द 10 ग्राम एंड यहाँ पे इसका क्या गिवन है 10 ग्राम विद द एक्यूरेसी ऑफ 10 मिलीग्राम और 50 ऑसिलेशंस ऑफ द स्प्रिंग फाउंड टू बी 60 सेकेंड. तो 50 ऑसिलेशंस का तुम्हें क्या गिवन है. तो यहाँ मुझे लग रहा है यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक हुई. t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k होना चाहिए. राइट. तो इट्स अ टाइपिंग मिस्टेक. तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो यूजिंग द 60 सेकेंड्स और ये जो वॉच है उसका रेजोल्यूशन 2 सेकेंड है. तो मैं एक बार चेक कर लेती हूँ यहाँ पे फॉर्मूले से. t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k. तो अगर मैं इसका दोनों साइड स्क्वायर कर लेती हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो t स्क्वायर, बेसिकली ये एरर का क्वेश्चन है, इसमें इन्होंने इसमें दे दिया है. तो यहाँ से आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर और रूट हटेगा यहाँ से तो m बाई k हो जाएगा. तो यहाँ से अगर तुम k की वैल्यू कैलकुलेट कर लो बाई क्रॉस करके तो व्हाट विल बी द वैल्यू. तो k इज इक्वल टू हमारे पास आएगा, इट विल बी 4 पाई m स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर m अपॉन 4 पाई स्क्वायर m अपॉन t स्क्वायर. राइट. तो अगर मुझे क्या निकालना था, परसेंटेज एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट. तो हमें स्प्रिंग कांस्टेंट का एरर निकालना था. तो हम यहाँ से डेल्टा k अपॉन k कैलकुलेट कर लेते हैं. तो डेल्टा k अपॉन k की जो वैल्यू होगी, ये सब तो कांस्टेंट है, तो यहाँ से एरर में हमें पता है कि सारी वैल्यूज प्लस में लिखी जाती हैं. तो ये वैल्यू हो जाएगी मेरे पास डेल्टा m अपॉन m प्लस 2 टाइम्स, क्योंकि अगर t स्क्वायर है तो यहाँ 2 टाइम्स हो जाता है, अगर क्यूब है तो 3 टाइम्स हो जाता है. तो इट विल बिकम 2 टाइम्स डेल्टा t अपॉन t. राइट. तो डेल्टा k अपॉन k तुम्हें बाद में इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देना तो परसेंटेज एरर आ जाएगी. यहाँ पे फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाती है, स्प्रिंग कांस्टेंट में कितना चेंज हो रहा है फ्रैक्शनल में. तो डेल्टा m अपॉन m अगर मैं ध्यान दूं तो यहाँ पे वैल्यूज दी थी मुझे कि मेजर्ड वैल्यू ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट का मास 10 ग्राम है और उसकी जो एक्यूरेसी है वो 10 मिलीग्राम है, यानी कि डेल्टा m इज 10 मिलीग्राम. तो 10 मिलीग्राम को 10 की पावर -3 कर दो, दोनों को ग्राम में करोगे, डिवाइड करोगे, यूनिट सेम रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो 10 ग्राम था और ये 10 मिलीग्राम हो गया प्लस 2 टाइम्स डेल्टा t अपॉन t. तो जो रेजोल्यूशन है इसका वो कितना है 2. तो अगर हम ध्यान से देखें तो 2 बाई और जो ओवरऑल है वो 60 है. राइट. तो यहाँ पे डेल्टा t अपॉन t. अब ये मत सोचना कि इसमें क्या, इसका 50 ऑसिलेशंस का दिया है, तो दोनों में 50 से डिवाइड होगा, एरर में भी और उसमें भी, तो वो अपने आप ही क्या आ जाएगा, जैसे कि 60 बाई 50 करोगे और इसमें भी 2 बाई 50 करोगे तो वो दोनों में के लिए सेम हो जाएगा. तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली 60 और 2 ले सकती हूँ. तो ये 10 और 10 कैंसिल हो गया. तो यहाँ से ये वैल्यू आ रही है मेरे पास 0.001, क्योंकि ये 10 की पावर -3 है और ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 415. सो 1/15. सो 1/15 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली, सो 1/15 इज 0.0666. राइट. तो अगर इसको ऐड करोगे तो 001 तो इट विल बिकम, तो डेल्टा k अपॉन k की जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी 0.067. राइट. तो 076 ऐसा कुछ आएगा. ठीक है. अब इसको परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100 कर लो, इंटू 100 करोगे तो यूल गेट इट इन परसेंटेज, इट विल बिकम 6.76. सो द आंसर विल बी 6.76. तो हमने क्या कैलकुलेट किया है, सिंपली एरर का क्वेश्चन था, बेसिकली डायमेंशन जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ते हो उसके हिसाब से था कि एरर किसी भी चीज की अगर हमें कैसे निकालनी है. अगर हमें मास में एरर निकालनी होती तो हम फॉर्मूला पहले मास में निकाल लेते हैं और उसके बाद में उसका एरर इक्वेशन बना लेते हैं. तो यहाँ पे मुझे स्प्रिंग कांस्टेंट में एरर निकालनी थी, एरर परसेंटेज निकालना था, तो हमने इसमें स्प्रिंग कांस्टेंट का फॉर्मूला निकाला है और उसके बाद में फिर उसमें एरर का मेथड यूज कर दिया. राइट. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विद टाइम पीरियड t. तो ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी है, यानी कि ये बिल्कुल मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, साइनसॉइडल फॉर्म में दिया हुआ है, तो कुछ ऐसा सा ये मीन पोजीशन से शुरू हो रहा है. राइट. तो कोई भी इसमें फाई नहीं है और a इसका एम्पलीट्यूड है. और मुझे क्या बताना है, देखो क्वेश्चन कितना सिंपल है. इसमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस ऑसिलेटर बोल रहा है.
तो हम सबको पता होता है क्लास 10th से ही कि जो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है वो एक्सट्रीम पोजीशन पे होती है, दिस इज कॉल्ड द मीन पोजीशन, एंड दिस इज एक्सट्रीम। एक्सट्रीम पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है और मीन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, राइट। तो अगर हमसे एक्सट्रीम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटर किस टाइम पे होगी, तो अभी पार्टिकल मेरा मीन पोजीशन पे है क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा दिया है कि साइन ओमेगा टी, यानी कि ये मीन पे है, और अगर मीन से एक्सट्रीम पे जाने में कितना टाइम लेगा, क्योंकि पूरा टाइम पीरियड जो होता है वो कैपिटल टी होता है, तो पूरा टाइम पीरियड का मतलब पहले वो मीन से एक्सट्रीम जाएगा, एक्सट्रीम से मीन आएगा, फिर इधर से एक्सट्रीम जाएगा, फिर इधर से मीन आएगा। तो दैट मीन्स केवल मीन टू एक्सट्रीम टाइम क्या होता है, 1/4 होता है। सबको पता है ये टाइम कितना होता है, T/4 होता है। और क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, टाइम की वैल्यू ऑलरेडी इसने T/2 बीटा दी हुई है, और मेरा आंसर क्या आ रहा है T/4, तो कंपेयर करोगे तो बीटा की वैल्यू 2 आ गई, सो आंसर इज 2, राइट। तो सिंपल क्वेश्चन था, डायरेक्टली देखते ही कर सकते हो। Next question is, cylindrical block of mass m, area of cross section capital A is floating in a liquid of density rho with the axis vertical। यानी कि ये कुछ ऐसा है कि यहाँ पे कुछ टम्बलर टाइप का है जो इस पे फ्लोट कर रहा है। अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, यहाँ पे सपोज कुछ सिलेंड्रिकल ब्लॉक है या टम्बलर कह लो, तो ये इस पे क्या कर फ्लोट कर रहा है, राइट। क्रॉस सेक्शन एरिया तुम्हें इसका गिवन है, दैट इज A, और इसका जो मास है वो m है, और लिक्विड का डेंसिटी कितना है, रो, राइट। तो लिक्विड में अगर कोई चीज फ्लोट कर रही है, अगर एग्जैक्टली फ्लोट कर रही है तो उस पर क्या होता है, ओवरऑल फोर्स 0 होता है, लेकिन अगर हम एपरेंट फोर्स 0 होता है, लेकिन अगर हम क्या देखें, क्योंकि इसमें बॉइंट फोर्स लगता है और एक वेट लगता है, तो वेट डाउनवर्ड लगेगा और बॉइंट अपवर्ड लगेगा, दोनों बैलेंस कर देते हैं तो ऑब्जेक्ट फ्लोट करता है, राइट। नो, लेकिन अगर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हेन डिप्रेस्ड अ लिटिल एंड रिलीज्ड द ब्लॉक ऑसिलेट्स, यानी कि अगर तुमने क्या किया, ऐसे मग है उसको डिप किया और रिलीज किया तो वो अपने आप ही क्या करने लगेगा, इट विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग। तो तुम्हें उस ऑसिलेशन का टाइम पीरियड बताना है, करेक्ट। तो अगर मैं टाइम पीरियड लिखना चाहूँ तो टाइम पीरियड हमें पता होता है T इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं T इज इक्वल टू, अगर ओमेगा के टर्म में लिखना चाहें, या T इज इक्वल टू 2π/ओमेगा होता है इन जनरल। अगर मैं किसी भी चीज का टाइम पीरियड लिखना चाहूँ तो ये जनरल वैल्यू है, किसी भी ऑसिलेशन का टाइम पीरियड तुम्हें निकालना है तो T इज इक्वल टू 2π/ओमेगा निकाल सकते हो। तो बेसिकली ओमेगा निकालना है ना। तो ओमेगा हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हमें पता है कि अगर मैंने इसको x डिस्प्लेस कर दिया, अगर मैंने इसको x डिस्प्लेस कर दिया तो यहाँ पे क्या फोर्स लगेगा, तो एक फोर्स तो अपवर्ड लगेगा, पॉइंट फोर्स। तो पॉइंट फोर्स से अगर मैं उसको इक्वेट कर दूं किससे, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन में SHM का लिख देती हूँ, है ना, एक्सेलरेशन SHM का, ठीक है। तो एक्सेलरेशन से अगर मैं, क्योंकि अगर मुझे SHM का एक्सेलरेशन मिल गया तो मुझे एक्सेलरेशन SHM का पता होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर x। मैंने स्टार्टिंग में बताया था, दिस इज कॉल्ड द कंडीशन फॉर SHM। तो अगर ऑब्जेक्ट में क्वेश्चन में दिया है कि इट इज ऑसिलेटिंग, यानी कि ये एक्सेलरेशन ऑफ SHM क्या होगा, नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होगा, राइट। तो यहाँ पे बस मास इनटू एक्सेलरेशन को किससे, बॉइंट फोर्स से इक्वेट कर दो, तो बॉइंट फोर्स मेरे पास क्या होगा, mg। तो जो मास m होगा उसको हम वॉल्यूम इनटू डेंसिटी के इक्वल लिखेंगे। तो वॉल्यूम कौन सा, वो अगर हम मास को लिखें वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू g, v रो g, राइट, दिस इज योर बॉइंट फोर्स। और वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं, एरिया इनटू लेंथ। तो एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया A दिया हुआ है और डिस्प्लेस इसने x किया है। क्वेश्चन में कहा हुआ था कि इसको कितना डिस्प्लेस किया है ऑब्जेक्ट को, लिटिल डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि x डिस्प्लेस अगर हमने किया है, तुम y ले लो, x ले, जो भी हमने x डिस्प्लेसमेंट इसका माना है, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, a इंटू एक्स, और डेंसिटी ऑफ द लिक्विड रो गिवन है, और ये हो गया g, तो ये हो गया मास m गिवन है, और ये एक्सेलरेशन SHM का आ गया। तो SHM का जो एक्सेलरेशन है, अगर मैं यहां से देखूं तो ये आ रहा है मेरे पास a रो g अपॉन m इंटू एक्स। तो मैं नेगेटिव का मतलब सिर्फ ये है कि वो उसका डायरेक्शन अपोजिट है, तो x का जो कोफिशिएंट होगा ना, यही ओमेगा स्क्वायर है, राइट। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, यानी कि अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो जो मेरा ओमेगा स्क्वायर है वो वैल्यू कितनी आ गई, a रो g अपॉन कैपिटल M। तो अगर यहां से अगर ओमेगा निकालोगे तो यहां से रूट ले लो तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा, राइट। तो ये ओमेगा आ गया। अगर मुझे टाइम पीरियड चाहिए तो T इज इक्वल टू 2π/ओमेगा। तो इससे अगर मैं डिवाइड कर दूं तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी। तो यहाँ से अगर मैं ओमेगा से डिवाइड कर रही हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, a रो g, और न्यूमरेटर में आएगा m। तो ऑप्शन मैच कर लेते हैं, तो 2π अंडर रूट m d पर।
2 पाई अंडर रूट m अपॉन रो ए जी, राइट। तो क्वेश्चन में सिंपली बॉइंट फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन से इक्वेट किया है, और जो एक्सेलरेशन आया है उसको मैंने ओमेगा स्क्वायर एक्स लिखा है, वो हमें पता ही है कि होता है, तो वहां से ओमेगा आ जाएगा, और जब ओमेगा आ जाएगा तो टाइम पीरियड आ जाएगा। So the next question is, simple pendulum of the string length 30 centimeter performs 20 oscillation in 10 seconds. Mind it, 20 oscillation in 10 seconds. The length of the string required for the pendulum to perform the oscillation in the same time duration is. ठीक, तो हम 40 ऑसिलेशन चाहते हैं। अभी ये कितना ऑसिलेशन कर रहा है? 20 ऑसिलेशन कर रहा है 10 सेकंड में। अब मैं चाहती हूँ 10 सेकंड सेम टाइम ड्यूरेशन दिया है, ध्यान देना, सेम टाइम ड्यूरेशन, यानी कि 10 सेकंड में मैं चाहती हूँ कि 40 ऑसिलेशन करे। अभी मैं कह रही थी कि 1 घंटे में 10 क्वेश्चन करो, अब मैं कह रही हूँ 1 घंटे में 40 क्वेश्चन करो, राइट। तो अभी ये क्या कर रहा है? 10 सेकंड में 20 ऑसिलेशन कर रहा है, तो अभी सेम टाइम में मैं चाहती हूँ कि ये 40 ऑसिलेशन करे, तो हाउ मच लेंथ इज रिक्वायर्ड, व्हाट लेंथ इज रिक्वायर्ड, राइट। तो सिंपली अगर हम टाइम पीरियड निकालना चाहें तो फर्स्ट केस में टाइम पीरियड क्या आ जाएगा? टाइम पीरियड होता है टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 ऑसिलेशन। तो 20 ऑसिलेशन अगर 10 सेकंड में हो रहा है तो 1 ऑसिलेशन होगा 10/20 यानी कि 1/2 सेकंड्स में, और T2 हम चाहते हैं कि 10 सेकंड में 40 ऑसिलेशन हो, तो ये हो जाएगा मेरे पास 1/4 सेकंड। तो मुझे T1 T2 की पता चल गई वैल्यू, और मुझे पता है सिंपल पेंडुलम के केस में टाइम पीरियड की जो वैल्यू होती है T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L/G, राइट। तो पाई और G इज एवरीथिंग कांस्टेंट, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? अगर मुझे सेकंड का टाइम पीरियड चाहिए, सेकंड के लिए लेंथ चाहिए, तो मुझे पता है कि टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ है, तो ये सिंपली हो जाएगा L2/L1, राइट। तो अगर यहाँ से मुझे कैलकुलेट करना है, लेंथ ही कैलकुलेट करना है, ओके, तो लेंथ अगर हमें सेकंड पीरियड की, यानी कि मुझे L2 कैलकुलेट करना है, और L1 मुझे दिया है 30 सेंटीमीटर, तो आंसर अपने आप ही मैं सेंटीमीटर में पुट करूंगी, सेंटीमीटर में ही आएगा, रेशियो है। तो T2 अपॉन T1 अगर मैं करूं तो यहाँ से आएगा 1/4 अपॉन 1/2, तो 1/4 अपॉन 1/2 कितना हो गया? सो 1/4 अपॉन 1/2 इट विल बिकम 1/2, राइट। तो अगर दोनों साइड स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो हो जाएगा L2/30 इज इक्वल टू 1 बाय स्क्वायर कर रहे हो तो इट विल बिकम 1/4। तो यहां से जो वैल्यू आ रही है L2 की वैल्यू आ रही है L2 इज इक्वल टू 30/4, 15/2, तो 15/2 is your 7.5, right? So the answer will be 7.5. तो क्वेश्चन वाज अगेन सिंपल, मैं तो इसे क्लास 9th लेवल का क्वेश्चन बोलूंगी, क्योंकि 9th में भी आईसीसी में एक चैप्टर है स्टार्टिंग में जहां पे ये फॉर्मूला दिया जाता है, कुछ ऐसी चीजें कैलकुलेट होती है, राइट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके, तो इसमें क्या दिया है आपको? 2 ब्लॉक्स विद मासेस, उनके मासेस गिवन है, आर अटैच्ड टू द एंड्स विद द स्प्रिंग, द एनर्जी स्टोर्ड, ए की एनर्जी तुम्हें गिवन है दैट इज ई, और तुम्हें दूसरे की एनर्जी आई थिंक निकालनी है, हाँ, द एनर्जी स्टोर्ड इन बी हमें कैलकुलेट करनी है व्हेन द स्प्रिंग कांस्टेंट के ए के बी का एक तरीके से आपको रेशियो गिवन है 3:4, राइट। तो मुझे के के बी का रेशियो पता है, तो मैं सिंपली यहाँ पे दोनों अलग अलग स्प्रिंग पे हैं, तो क्वेश्चन सिंपल हो गया, क्योंकि अगर इसको स्ट्रेच करोगे तो यहाँ पे इसका, जैसे कि अगर हम इसका जो वेट है वो इसको क्या करेगा, इसके स्प्रिंग के फोर्स के इक्वल हो जाएगा, यानी कि अगर मैं इसके लिए इक्वेशन लिखूं फर्स्ट वाले के लिए तो इट विल बिकम 100G इज इक्वल टू के ए इंटू एक्स, ए वाले का लिए तो एक्स ए लिख दो, तो एक्स क्या होता है? उसका डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो के सबके लिए अलग अलग हो सकता है, क्योंकि कोई स्प्रिंग हार्ड होती है, कोई सॉफ्ट होती है, तो उस बेसिस पे यहाँ पे के अलग अलग दोनों का दिया है, रेशियो अलग दिया है, तो अलग अलग ले सकते हो। ये हो गई इक्वेशन 1। सेकंड के लिए लिखोगे, कोई वेट तुमने अप्लाई कर दिया तो ये स्प्रिंग के हिसाब से उस पर के एक्स लगेगा, तो स्प्रिंग फोर्स के एक्स माइनस के एक्स होता है, वो अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड यूज कर रही हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 200G की वैल्यू क्या हो जाएगी? के बी एक्स बी, राइट। तो मुझे क्या फाइंड करना था? ओके, एनर्जी। तो एनर्जी, स्प्रिंग में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है, अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रिलीज किया तो उसमें एनर्जी स्टोर्ड हो जाती है, वो होती है हाफ के एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ से इसको डिवाइड कर दूं तो मुझे एक्स से एक्स बी का रेशियो मिल जाएगा, क्योंकि के बी का रेशियो मुझे ऑलरेडी पता है। तो ये जी जी गया, एंड ये 1/2 से ये यहाँ से क्या बचेगा? 1/2। के ए के बी का रेशियो अगर यहाँ से देखोगे तो दिस इज 3/4। तो फ्रॉम हियर यू कैन कैलकुलेट के ए अपॉन के बी इज 3/4। तो के ए अपॉन के बी को पुट कर दो 3/4, तो यहां से तुम्हें मिल जाएगा एक्स ए अपॉन एक्स बी। सिंप्लीफाई अगर मैं कर देती हूँ यहाँ से, तो मुझे मिलेगा एक्स ए अपॉन एक्स बी की वैल्यू जो मिल रही है, एक्स ए अपॉन एक्स बी की जो वैल्यू मिल रही है दैट इज 2/3, क्योंकि इस साइड ले जाओगे तो ये यहाँ पे 2 हो जाएगा और इधर 3 आ जाएगा, राइट। तो एक्स ए अपॉन एक्स बी की वैल्यू, लेकिन मुझे चाहिए एनर्जी,
एनर्जी की वैल्यू चाहिए। सेकंड स्प्रिंग के लिए एनर्जी पूछ रहा है, ई के टर्म में आंसर आ रहा है, राइट। तो अगर मैं इसको सेकंड के लिए एनर्जी ई डैश लिख देती हूँ तो एनर्जी हो जाएगी हाफ के बी एक्स बी स्क्वायर, और पहले वाले के लिए तो एनर्जी ई गिवन ही है, दिस इज हाफ के ए एक्स ए स्क्वायर। तो अगर हम दोनों को डिवाइड कर दें, राइट, तो ई के टर्म में आंसर आ जाएगा, क्योंकि हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, और के बी का रेशियो तुम्हें ऑलरेडी पता ही है, के बी का रेशियो कितना है, 3/4। तो मुझे यहाँ ध्यान देना के बी अपॉन के ए पुट करना है, क्योंकि मैंने इसको न्यूमरेटर में लिखा है बी वाले को, राइट। तो यहाँ पे तुम इसको के ई बी भी लिख सकते हो, जो भी मैंने ई डैश लिख दिया। तो के बी अपॉन के ए की वैल्यू अगर हम तुम देखोगे तो के बी अपॉन के ए की जो वैल्यू है वो 4/3 है, और एक्स बी यहाँ देखो एक्स ए अपॉन एक्स बी है, तो अगर मैं डायरेक्टली पुट करूँ तो एक्स बी अपॉन एक्स ए की वैल्यू आएगी 3/2। वो स्क्वायर है तो स्क्वायर भी कर दो, तो यहाँ से आ रहा है मेरे पास 4/3 इंटू 9/4, तो 4 गया, 3 जा 9, तो ये वैल्यू आ रही है 3। ये वैल्यू किसके इक्वल है, ई डैश अपॉन ई के, तो ई डैश की वैल्यू आ गई 3। तो देख रहे हो क्वेश्चन इज सो सिंपल। यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, सिंपली दो फॉर्मूला लगा के आंसर आ रहा है। दिस इज अगेन अ ग्राफ क्वेश्चन। तो ग्राफ क्वेश्चन में तो कुछ कैलकुलेट नहीं करना होता, डायरेक्टली आंसर बता देते हो, है ना। अगर तुमने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया होगा तो देखो, इसीलिए कहती हूँ ना, पैटर्न चेक करो भाई। क्वेश्चन कितनी बार इस तरीके का आता है, हर बार ही पूछता है ना, क्लास में भी कराया जाता है, बेसिक है। तो यहाँ पे क्या दिया है कि तुम्हें सिंपल पेंडुलम की इक्वेशन पता होती है, टी इज इक्वल टू 2π√L/g। तो जो ग्राफ तुम्हें फाइंड करना है 1/t² और L का, तो एक काम करो, इसका स्क्वायर करके रेसिप्रोकल करो, क्योंकि y एक्सिस को 1/t² लेना है और x को L लेना है, तो ग्राफ की इक्वेशन कन्वर्ट करो इसको, तो t² इज इक्वल टू हो जाएगा 4π² L/g। तो मुझे 1/t² चाहिए, तो 1/t² की जो वैल्यू आएगी, इसका रेसिप्रोकल कर दो, तो ये हो जाएगा 1/4π² g/L। तो ये 1/t² तुम्हारे पास y एक्सिस पे है, और ये तो पूरा का पूरा कांस्टेंट हो गया g अपॉन 4π², तो मैं इसको k/L लिख देती हूँ, k/L। तो यानी कि एक तरीके से क्या बन गया, ये x एक्सिस पे, तो L को मैं अगर x लिख दूं तो y इज इक्वल टू 1/x टाइप की इक्वेशन बन रही है, या k/x टाइप की। तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। क्या होता है, जैसे कि जो हमारे पास बॉयल्स लॉ वगैरह में आता है ना, pv इज इक्वल टू कांस्टेंट, जब भी xy इज इक्वल टू कांस्टेंट टाइप की इक्वेशन बनती है, तो इक्वेशन क्या होती है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो सी पार्ट हो जाएगा डायरेक्टली, दिस इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, राइट। क्वेश्चन वाज सिंपल एंड दिस वन इज द लास्ट क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज ऑसिलेटिंग विद एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ध्यान दो, अगर तुमने थोड़ा सा ध्यान देकर इस क्वेश्चन को रीड किया तो क्वेश्चन का आंसर तुम बहुत आसानी से निकाल सकते हो। ये तुम्हें ओमेगा दिया है, वो भी एनर्जी का, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर ऑसिलेटिंग विद दिस फ्रीक्वेंसी। तुम्हें पता होना चाहिए कि जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो ये होता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर। अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, राइट। तो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, अगर हम सिंपली एक्स इज इक्वल टू सपोज मैंने लिख दिया ए साइन ओमेगा टी, राइट। तो अगर मेरे पास इसकी वेलोसिटी इसको डिफरेंशिएट करके आती है तो ये क्या बन जाता है, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, राइट। तो हाफ एम वी स्क्वायर से अगर हम करते हैं तो ये वैल्यू आती है हाफ एम वी स्क्वायर, तो यहाँ पे ए स्क्वायर भी लिख सकते हो, हाफ एम, अगर इसका स्क्वायर करोगे तो हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन दैट ये कॉस स्क्वायर है, और अगर तुम लोग तो मैथ्स के स्टूडेंट हो तो तुम्हें ये बात क्लियर होती है कि यहाँ पे स्क्वायर है, और कॉस स्क्वायर थीटा को आई कैन ऑलवेज राइट, जैसे कि कॉस 2 थीटा को तुम लिख सकते हो क्या, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, तो कॉस 2 थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, राइट। तो इसको, ये जो फ्रीक्वेंसी है, मैं क्या बताना चाह रही हूँ कि यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो डबल है डिस्प्लेसमेंट की फ्रीक्वेंसी के। तो एसएचएम की जो फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड करनी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम ऑसिलेटर, और दी है तुम्हें फ्रीक्वेंसी काइनेटिक एनर्जी की। तो तुम्हें ये बात अगर डायरेक्टली पता है कि एनर्जी की जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो एनर्जी की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो डबल होती है, राइट। तो अगर तुम्हें एसएचएम की फ्रीक्वेंसी चाहिए तो एनर्जी की फ्रीक्वेंसी की हाफ हो जाएगी। तो अगर मैं सीधे सीधे, क्योंकि ओमेगा दिया है तो मैं ओमेगा लिख देती हूँ, तो ये अगर मुझे ओमेगा ऑफ एसएचएम निकालना है तो ओमेगा अगर एसएचएम का होगा तो वो सीधे सीधे इसका हाफ होगा, तो 176/2, क्योंकि एनर्जी में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो डबल होती है, वो कॉस स्क्वायर का टर्म होता है, और यहाँ पे ये ओमेगा टी है, राइट। तो इसको अगर हम डिवाइड कर दे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 88 आ रहा है। लेकिन मुझे फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में पूछ रहा है, हर्ट्ज में पूछ रहा है तो ओमेगा को 2πf लिख दो, क्या प्रॉब्लम
है ना। तो अगर मैं इसको 2 पाई एफ लिख करके हर्ट्ज में निकाल दूंगी तो ये 88 अपॉन 2 पाई हो जाएगा, पाई की वैल्यू लिख दो 22/7 तो हो गया 44 2 जा तो ये आ जाएगा 14, तो 14 यानी कि ए पार्ट विल बी योर आंसर। सो लुक एट द क्वेश्चन, क्वेश्चंस आर वेरी वेरी सिंपल, आई कैन से दिस चैप्टर इज रियली स्कोरिंग चैप्टर। तो फाइनली द फॉर्मूलाज आर हियर, यू कैन राइट ऑल द फॉर्मूलाज राइट। और इसके हिसाब से तुम देख सकते हो कि इसी फॉर्मूले पे क्वेश्चंस पूछा गया है। अगर तुम 3-4 पार्ट्स एनालाइज कर लोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या रिवाइज करना है, किस टाइप का क्वेश्चंस आता है राइट। सो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।